کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آل نبی کی الفت، اصحاب کی عقیدت، آل نبی کی الفت، اصحاب کی عقیدت، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں۔ سنت کی بہار آئیے، چلو فیضان مدینہ میں۔ آج سے تقریباً امیر سنت نے 42 سال پہلے جو پودا لگایا تھا وہ آج بہت بڑا درخت بن چکا ہے، اور یقیناً آپ کی ذات سے، آپ کی کردار سے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں مسلمان تائب ہو گئے گناہ سے۔ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے عقائد درست ہوتے ہیں اور سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ولی کی صحبت میں گزارنے سے انشاءاللہ تعالی ہم بھی نیک بن جائیں گے، تو یہ بس ایک مقصد لے کر ہم یہاں آتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں شعور دیا، ہمیں جو ہے وہ قرآن سیکھنے سکھانے کا جذبہ دیا۔ یہ پیغام امیر اہل سنت نے دیا کہ خود بھی قرآن سیکھنا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی سکھانا ہے۔ کسی پہ بغض نہیں رکھو، یہ ہمیں سکھاتی ہے۔ کسی چیز سے، نہ کسی ولیوں سے بغض، نہ اہل بیت سے، نہ صحابہ کرام سے۔ الحمدللہ رب العالمین، 1 سال سے میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا ہوں، اور نماز کا مجھے الحمدللہ پابند بنا دیا دعوت اسلامی نے۔ زندگی وہ نہیں جو میں گزار رہا تھا، اصل زندگی یہ ہے جو اب گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی نے بہت کچھ دیا۔ امیر اہل سنت نے یہ داڑھی رکھوائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جو آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ زندگی کا مزہ ہی دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ لوگوں کا اخلاق، لوگوں کا پیار بڑا پیارا لگا مجھے، اسی محبت کی وجہ سے میں دوبارہ آیا ہوں یہاں پہ۔ سب کو عزت دی جاتی ہے یہاں پہ، جو بھی آتا ہے، پینٹ شرٹ والے بھی آتے ہیں ان کو بھی عزت دی جاتی ہے، ماشاءاللہ سے سب کو عزت دی جاتی ہے۔ مدینہ مدینہ ہے یہاں پر۔ بہت محبتیں ملی ہیں، آج جو کھڑے ہوئے انہی کی بدولت کھڑے ہوئے ہیں، آج نہیں تو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہم۔ میں 13 دن کے کورس کے لیے آیا ہوں، تو الحمدللہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو ماشاءاللہ بہت ہمیں بہت دل کو پسند آیا۔ امامہ بھی سجایا ہوا، جی ہاں، امامہ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ باندھا ہے۔ جی ہاں الحمدللہ۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ شکر، بہت مزہ آیا میرے کو۔ جنہوں نے دیکھا میں نے تو ویڈیو کال پہ یا جس نے بات کی، جس نے تصویر میں سینڈ کیا، تو انہوں نے ہم کو مبارک دے، بھائی ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے لگے۔ ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں میرا شکریہ۔ جس کی گھریلو کوئی پریشانی ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے، تو میں کہتا ہوں فیضان مدینہ بڑی جلدی جوائن کر لے، انشاءاللہ تعالی ادھر سے آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی تو شاید آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، یہ ہم حاصل کر لیں گے۔ یہ میری آزمائی ہوئی خواہش ہے۔ دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جو فلاحی کام بھی کر رہی ہے، جیسے FGRF۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کیا، دنیا بھر میں کام کیا دعوت اسلامی نے، اور گھر گھر پہنچایا راشن، سیلاب میں جا کے راشن پہنچایا۔ میں سب کو یہ میسج دوں گا کہ دیکھیں ہر انسان نے مرنا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے اور آپ کی قبر بھی اچھی ہو جائے، تو آپ آ جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ اس جیسا ماحول مل ہی نہیں سکتا آپ کو۔ اصحاب و اہل بیت پر ہماری جان قربان۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں، زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور زبان سے نہ بھی کہیں تو دل کی نیت ہو گئی تو معتکف تو آپ ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا،
जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एतिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एतिकाफ की नियत की थी। एतिकाफ की नियत नहीं की थी, अब इफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार मस्जिद में नहीं कर सकेंगे, हाँ एतिकाफ की नियत कर लीजिए, अब बेशक इफ्तार भी कर लीजिए। ताहम मुनासिब तरीका ये है कि सवाब की नियत से एतिकाफ की नियत करें और कुछ जिक्र और दुरूद कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब भले अब खाए पिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1445 हिजरी के सफर शरीफ की आज 25वीं शरीफ है, 25वीं शब है। जी हाँ, जहाँ इस वक्त मैं हूँ, मैं बैरून मुल्क हूँ, तो यहाँ पर हमारे यहाँ आज 25वीं शरीफ है, 25वीं शब है आला हजरत की। और जहाँ मदनी चैनल जहाँ से इस वक्त जमा है भाई, वहाँ 23वीं शब है। तो मैं 25वीं शब की निस्बत से ज़िया दुरूद व सलाम पेज नंबर 8 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 25 पेश करता हूँ। जैसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला, आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बिला वजह कायम रहता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि हम जो यौम रज़ा मनाते हैं, इसके इसाले सवाब की महफिल कैसे घरों में सजाई जाए, आप रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। आज जिसने कभी जिंदगी में महफिल नहीं सजाई या ना देखी हो तो वो शायद वो पूछे कि ये कैसे होता है और ये क्या होता है। बाकी तो हर आशिक रजा को या आशिक रसूल को पता ही होता है कि महफिल कैसे सजती है। अपने ईसाई भाइयों को, दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को जमा करते हैं, इसमें कुछ कुरान ख़्वानी करते हैं तो यासीन शरीफ यासीन ख़्वानी कर लें या दुरूद ख़्वानी कर लें, कुछ तिलावत कर लें, कुछ नातें पढ़ लें, कोई नियाज हो तो ये पेश कर दें, तो इस तरह महफिल सजती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ चूँकि 25वीं शब है आला हज़रत की, तो हमने तो नियाज कर ली अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्लिप भी हमारा बन गया है, तो हो सकता है आज चले या फिर कल परसों चले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह के आशिकान रसूल का मदनी काफिला इस वक्त बलूचिस्तान के इलाके रकनी में मौजूद है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में सवाल अर्ज़ है कि अमीर अहले सुन्नत, बाज़ इलाकों में देखा ये है कि जब माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आगाज़ होता है तो बाज़ इलाकों में ये रिवाज है कि रोज़ाना की बेस पर खैरात करते हैं, और यानी जमा करके लोगों को खाना खिलाया जाता है, और नीयत ये होती है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में क्योंकि बलाएं उतरती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो ये खैरात करते इसलिए कि ताकि सफ़र में इन बलाओं से महफूज रहें। तो आपसे सवाल अर्ज़ है कि क्या इस नीयत की वजह से कि ये बलाओं से बचने के लिए और सफ़र में जो खैरात का सिलसिला कर रहे हैं, तो क्या ये बदशगुनी है या वैसे खैरात करने से बलाएं तो टलती हैं, तो इस खाने का क्या हुक्म होगा, रहनुमाई इरशाद फरमा दें। माशाअल्लाह, आपको और आपके मदनी काफिले वालों को मदनी काफिले में सफ़र करना मुबारक हो। सफ़र में लंगर चलाने में तो हरज नहीं है, दिन में आप 12 मरतबा खाना खिलाएं गरीबों को, इसमें मना नहीं है। लेकिन ये जो इसका तसव्वुर के चूंकि सफ़र में बलाएं उतरती हैं तो बलाओं को टालने के लिए, अल्लाह के लिए नहीं खिला रहे, बलाओं को टालने के लिए खिला रहे, तो ये तसव्वुर गलत है। असल बेशक सदका बलाओं को
रद्द करता है, लेकिन इसका ताल्लुक सफ़र के महीने से नहीं है कि साहब सफ़र में कोई स्पेशली बलाएं नाजिल होती हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है और दौरे जहालत में भी था ये, गैर मुस्लिमों में ये ज़माने से सदियों से चला आ रहा है ये तसव्वुर। तो इस्लाम ने इसका रद्द किया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद इसका रद्द फरमाया कि ला सफ़रा, सफ़र में कोई नहुसत नहीं है, कोई बुराई इस तरह की नहीं है जो ये लोग कहते हैं। तो इसलिए वो इस नियत से नियाज ना की जाए कि बलाएं चूंकि सफ़र में नाजिल होती हैं और ये टलेंगी, तो ये तसव्वुर गलत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि आला हज़रत अली रहमा का ये फतावा रज़विया है। आपने आला हज़रत अली रहमा के फतावा का मुताला कब से शुरू किया और इससे क्या क्या फ़वाइद आपको हासिल हुए, और हमें फतावा रज़विया का किस अंदाज में मुताला करना चाहिए, इस हवाले से भी रहनुमाई इरशाद फरमाइएगा। फतावा रज़विया शरीफ का तारुफ तो मुझे दावत इस्लामी से बहुत पहले से है, और कुछ न कुछ मतलब मेरे पास वो पहले तो वो फतावा रज़विया शरीफ मुखर्रजा तो था नहीं, वो उसकी कुछ 10 जिल्दें गालिबन थी पहले, फिर इसमें कोई बाद में कोई 11वीं का ज़ुहूर हुआ। तो इस तरह मतलब ये वो तखरीज नहीं थी, तो यूँ उसका समझना काफ़ी दुश्वार होता था। अरबी फ़ारसी को इसके तर्जमे अंदर में नहीं थे। तो अब माशाअल्लाह ये कि अब तो मुखर्रजा यानी कि तखरीज किया हुआ ने हवाले डाले हैं, अरबी इबारतों के तर्जमे किए गए हैं। तो ये माशाअल्लाह अब तो फतावा रज़विया को समझना पहले की निस्बत सहल है, लेकिन अब भी ज़रा उर्दू अच्छी आती होगी तो ही समझेगा। तो यूँ फतावा रज़विया शरीफ से मतलब बहुत पहले से मेरी दिलचस्पी, मेरा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह रहा है अल्लाह की रहमत से। अब इसका मुताला करने का ऐसा है कि दिलचस्प जो इसमें अबवाब होते हैं ना, वो उसमें ये हैं अल हज़र वल इबाहा, जिसमें तरह तरह के मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी के सवाल आते हैं कि मसला नहीं कि कपड़े किस तरह पहनने हैं, तो कंघी कैसे करनी है, तो इसका मसला क्या। तो मैंने बिल्कुल ये देखा उसमें मुख्तलिफुल अलवान टेक्निक कलर रंग बरंगे इसमें सवाल जवाब है, तो इसमें दिलचस्पी ज़्यादा होती है। उर्दू अच्छी हो, समझ पड़ती हो, तो इसके लिए तो फतावा रज़विया जैसा मतलब इल्मी ज़ख़ीरा मिलना मुश्किल है। तो यूँ अगर आप चाहें तो पहले इसका मेरा ख्याल 21, 22, 23 इस तरह के हिस्सों में ये मसाइल हैं, तो इनसे आप चाहें तो शुरू करें, या अपनी अपनी दिलचस्पी होती है। किसी को मतलब किसी उनसे दिलचस्पी हो, किसी को वो अमलियात वगैरह से दिलचस्पी होगी, औराद वज़ाइफ, तो उसकी 26वीं जिल्द गालिबन उसमें है ये। तो अपनी अपनी दिलचस्पी के हिसाब से इसका मुताला करें, लेकिन उलमा से मरबूत रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो कई बातें ऐसी होती है कि जो फिर भी समझ नहीं आएंगी, भले उर्दू अच्छी है। और उलमा को भी कई बातें बाद में समझ में नहीं आती। अगर हर आलिम आला हज़रत के इल्म तक पहुंच जाए तो बात ही क्या है। तो इनको फिर दूसरे अपने से बड़े उलमा से रुजू करना पड़ता है और समझना पड़ता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सैयदी अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि जैसे कि अभी ये वबा फैली हुई है आशुब चश्म की, तो ये सुन रखा है हमने कि जिन्हें ये आशुब चश्म का मर्ज़ होता है वो नाबीना ही से महफूज रहता है। आशुब चश्म एक मखसूस मरज़ है, कुछ बीमारी सुना है कि कुछ लोगों को हो रही है, हमारे यहाँ गालिबन ये कराची में फैली है। तो आशुब चश्म है ना, इसमें आँख लाल हो जाती है और गदला पानी बहता है, वो गाढ़ा सा पानी बहता है। तो ये शायद आशुब चश्म नहीं फैली,
कोई बीमारी जरूर फैली होगी कि जिससे मतलब आंखों में दर्द होता होगा और कुछ पानी वगैरह आता होगा। तो हर बीमारी को आशुब चश्म नहीं बोलते, जैसे हर बीमारी को कैंसर नहीं बोलते, तो एकदम डराते हैं ना आदमी को। तो खैर आशुब चश्म में आमतौर पर लोग समझते नहीं है। आशुब चश्म ये अच्छी बीमारी है। हदीस पाक में 3 बीमारियों के बारे में फरमाया कि इसको बुरा नहीं जानो, मकरूह मत समझो, नापसंद मत करो इसको, कि इसमें एक आशुब चश्म भी है कि इससे अंधापा दूर होता है, कि अगर यानी कि अंधापे को रोकेगी, ये आंखों की रोशनी जाहिर नहीं होने देगी, जिसको आशुब चश्म होता है इसको ये फवाइद होते हैं। अच्छा, अब ये ढूंढ के ये सन ग्लासेस वाले इस्लामी भाई दिखा रहे हैं, अब मुझे दिखाइए सैकड़ों हजारों जमा हुए हैं कितने इसमें ये आंख की बीमारी वाले? 2 अभी तक तो मुझे नजर आए हैं। तो अगर हजारों में 2 हो तो उसको बीमारी फैलना नहीं बोलते। ताहम अगर है भी तो अल्लाह पाक सब पर आफियत उतारे और शिफा कुल्ली अता फरमाए। बेचारे ज़ाहिर है जिनको होती है वो तकलीफ में तो आते हैं, अंदर स्टूडेंट, अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए और शिफा अता फरमाए। हर नमाज के बाद ही पेशानी पर हाथ रखें और सांस रोकें, एक सांस में सांस ले लें, या नूरो या नूरो या नूरो या नूरो या नूरो, ये 11 बार एक सांस में कह लें और ये 10 उंगलियों पर दम करके आंखों पर फेर लें। इसका एक आंखों की ये मुस्तकिल हर नमाज के बाद उम्र भर अगर करें तो मदीना इंशाअल्लाह से आंखों की हिफाजत होगी। और दूसरे ये कि नमाज के बाद फकशफना अन्का गिताअका फबसरुकल यौमा हदीद, ये 3 बार पढ़ के उंगलियों पे दम करके आंखों पर यूं फेर लें। और आयतुल कुर्सी में जब वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा तक पहुंचे, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द पर अपनी ये 5 उंगलियां सीधी आंख पर सीधे हाथ की, उल्टी आंख पर उल्टे हाथ की 5 उंगलियां यूं रख ले। वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा ये 11 मरतबा पढ़े और फिर पढ़ेंगे वहुवल अलियुल अज़ीम, नहीं आयतुल कुर्सी मुकम्मल कर लेंगे और अब दम करके इन 10 उंगलियों पर आंखों पर फैल ले। तो इंशाअल्लाह आंखों की हिफाजत होती रहेगी, बीनाई की हिफाजत होती रहेगी, नजर इंशाअल्लाह महफूज रहेगी कमजोरी से, और इस तरह इंशाअल्लाह फवायद हासिल होंगे। आशुब चश्म से बचने का एक वजीफा, लेकिन मेरी गालिबन ख्याल में आशुब चश्म की बीमारी नहीं फैली। अगर फैली है तो मैंने जो इसकी अलामत बताई वो मुझे बता दीजिए। अभी मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की थी कि अभी जो अलीयुल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है, बयान किया गया है कि पहले सीधे हाथ के नाखून को इस तरह तरशवाए यानी काटे या कटवाए कि सबसे पहले छोटी उंगली, फिर बीच वाली, फिर अंगूठा, फिर मंझली, ये छोटी के बराबर जो है ये मंझली कहलाती है, फिर कलमे की ये अंगूठे के बराबर वाली उंगली, और बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हाथ में पहले अंगूठा, फिर बीच वाली, फिर चुंगलिया, फिर कलमे की, फिर मंझली यानी सीधे हाथ में फिर मंझली यानी सीधे हाथ में चुंगलिया से शुरू करे और उल्टे हाथ के अंगूठे से और एक उंगली छोड़कर और बाज में 2 छोड़कर कटवाए। एक रिवायत में आया है कि इस तरह करने से कभी आशुब चश्म नहीं होगा। बहार शरीयत हिस्सा 16 हवाला बहार शरीयत हिस्सा 16 पेज नंबर 583 हवाला दुर्रुल मुख्तार वरदुल मुख्तार। ये बहार शरीयत में तरीका लिखा है, थोड़ा मुश्किल है तरीका, तो अगर कोई चाहे तो ये भी तरीका कर सकता है। आसान तरीका भी लिखा हुआ है कि यूं दुआ की तरह हाथ उठा लें। अब ये शहादत की उंगली से नाखून काटना शुरू करें और तरतीब वार काटते काटते उल्टे हाथ के अंगूठे पर आप नाखून काट लें, उल्टे हाथ के अंगूठे का नाखून काट लें,
अब रह गया ये एक अंगूठा सीधे हाथ का, इसको सीधे हाथ के अंगूठे को अब काट लें नाखून, अब सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काट लें। इस तरह सीधे से ही शुरू हुआ, सीधे पर ही खत्म हुआ। ये भी एक तरीका रिवायत में है। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बाहर शरीफ में लिखा है कि सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह इसी तरीके से नाखून तराशते थे। और साहिब बाहर शरीयत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं भी इसी तरह नाखून तराशता हूँ, इसी पर अमल है मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से भी पहले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी इसी तरीके पर अमल है, आसान है ये। तो आप भी जो दोनों में से आप जो कर सकें तो उस पर अमल करें। और नाखून काटना ही है ना, तो हम क्यों ना मतलब जो तरीके रिवायतों में आए हम उसके मुताबिक काटें सवाब की नीयत से, तो सवाब मिलेगा। वैसे सुन्नत भी नाखून तराशना, लेकिन 40 दिन से जायद नाखून रखना नाजायज व मकरूह तहरीमी है। 40 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना गुनाहगार होगा। डॉक्टर का मैसेज हाजी इमरान ने भेजा है कि वो आंखों की मौजूदा बीमारी को अशुभ चश्म कह रहे हैं। अब खुदा जाने इनकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मैंने जो अलामत बताई जो अशुभ चश्म की, ये मैंने उलमा से मुझे मिली थी कि अशुभ चश्म ये होता है, अल्लाह बेहतर जाने। तो 12 डॉक्टर साहब जो कहें वो, अब मैं तो बैन हो गया ना। अब जिन उलमा से मुझे मालूम हुआ है अब वो दुनिया में भी नहीं है जो मैं रिकन्फर्म कर लूं, बहुत पुरानी मालूमात अर्ज कर रहा हूँ। तमाम डॉक्टर के अपने तजुर्बात और मालूमात होती है। तो हर बीमारी अशुभ चश्म कैसे हो जाएगी, एक मखसूस बीमारी है। कई बीमारियों के मुख्तलिफ नाम होते हैं ना, आंखों में भी इसी तरह मुख्तलिफ नामों की बीमारियां। तो ज़ाहिर है डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं ना, इनको ज्यादा मालूमात होती होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये था कि किसी की इजाज़त के बगैर उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, क्या शरीयत में इसकी इजाज़त है? रिजल्ट एक तो मुमतहिन तो चेक करते हैं, जिन्होंने नंबर देने होते हैं, मखसूस इसका अमला होता है वो तो चेक करता है। अब ये कि शायद ये होगा कि अब इसके पास आ गया या किसी दोस्त के हाथ में आ गया और वो चेक करे, तो ये ना करे ऐसा, कि वो हो सकता है कि उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस हो कि नंबर कम हुए, तो फिर इसको शर्म आएगा, रे इस्लामियात में ही तेरे नंबर कम आया यार, बड़ा मौलाना बन के फिरता है। तो ये हुआ ना कि वो दिल आजारी का सिलसिला। हाँ, अगर नंबर इसके मतलब हाई फाई नंबर लिए उसने, फिर तो शायद उसको खुशी हासिल होगी कि भले चेक करे, 4 को और भी दिखाए। तो इसलिए मतलब अनसब मुनासिब तरीका यही समझ में आता है कि बगैर इजाजत के ना ही देखे, कि इसमें फसाद का शर का पहलू मौजूद है और शर से बचना जरूरी है। मस्जिद मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं, इनको ज्यादा तजुर्बा है। जी ऐसा ही है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो इज्तिमाई रिज़ल्ट आया हुआ होता है सबका, तो अब वो तलाश करते पकड़ते अपने नंबर पे पहुंचते हुए किसी पे बिला कस्त बगैर किसी इरादे के नज़र पड़ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के वाकई इस तरह नहीं करना चाहिए कि दूसरों के रिज़ल्ट को तलाश करें और फिर वही जो आपने इरशाद फरमाया ऐसी सूरत हाल हो। अच्छा, नजर पड़े ना तो फिर खाली नजर पढ़कर समझना पड़े, नजर फिर इधर उधर फिसलेगी ना तो डिटेल पता चलेगी। तो जैसे ही नजर पड़े उसको हटा ले, ये मशवरा है। शायद मतलब मेरा एक कयास है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुन्नत के बारे में सवाल अर्ज़ है। मैंने सुना है कि बुजुर्गों के आगे चलना मना है। अब जैसे हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज भी नहीं निकल रही हो, या हम ऑफिस आ रहे हो, ऑफिस की टाइमिंग
इन लगाने की निकल रही हो, तो ऐसी सूरत में कोई बुज़ुर्ग आ जाता है रास्ते में, हम उनसे आगे चले जाएं तो कोई इसमें गैर शरई बात तो नहीं होगी, या भी उनकी बुज़ुर्गों की बेअदबी तो नहीं होगी? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। सवाल में समझ ये सका हूं कि कोई जैसे बुजुर्ग हैं तो उससे आगे चलना नहीं चाहिए, अदब है, और अगर आगे चला गया तो कोई हर्ज, कोई मजबूरी है या जल्दी में है, तो इसमें से कि वो अदब है। अगर बुजुर्गों के आगे कोई चला तो उसको ये नहीं कहेंगे इसने कोई गुनाह किया तो नाजायज काम कर दिया, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि बात सूरतों में तो आगे चलना ही होता है। बुजुर्ग को आगे चलकर ही मतलब रहनुमाई करनी होती है बाज़ औक़ात। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े बुजुर्ग और हिजरत के मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे चले थे। अच्छा, यहाँ एक जरूरत थी कि गार में आगे जाकर देख लूं कि कोई मुझे ईजा देने वाला कोई जानवर वगैरह ना हो जो मेरे आका को ईजा दे, तो इसलिए वो आगे चले। तो यहाँ इनका आगे चलना जो था मदीना, तो ऐसी मतलब है कि कोई सी जरूरतें भी पेश आ सकती है आगे चलने की, या बिला वजह भी कोई आगे चला तो गुनाह नहीं है। अदब यह कि बुजुर्गों के पीछे चला जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ी है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई बंदा हमसे पूछता है कि टाइम कितना हुआ है, अगर मिसाल के तौर पर टाइम होता है 12:28, तो हम उसको बोल देते हैं कि 12:30 हुए हैं, हालांकि टाइम हुआ होता है 12:28। तो रहनुमाई फरमाएं कि क्या ये भी झूठ में शामिल होगा या नहीं होगा? ये झूठ नहीं है। 12:28 बोलोगे तो भी झूठ का चांस तो रहेगा अगर इसको झूठ तस्लीम करेंगे तो। ये कितने सेकंड हुए हैं, फिर सेकंड बोलते बोलते 2-4 सेकंड आगे फिसल जाएंगे, तो ये करना क्या है? तो इसलिए ये 2-4 मिनट के फर्क के साथ ये पूरा टाइम बताते हैं, इसमें कोई शरअन हरज नहीं है। अब ये अलग बात है कि कोई मतलब है ना कि एहतियात ये करे और पूरा बताए तो उसको मना भी नहीं है, बल्कि ज़ाहिर है कि वो एहतियात, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए वो एहतियात करता है और उसको नाजायज नहीं समझता कि जो फर्क के साथ वो बता देते हैं 12:30 बज गए हैं तो 2:30 बज गए हैं, होती अभी 4-5 मिनट बाकी है, तो उसको गुनाह ना समझता हो, सिर्फ एहतियात करता हो कि मेरे मुंह से मतलब जो भी निकले वो सच के बहुत ज्यादा करीब हो, तो इंशाअल्लाह सवाब का हकदार होगा। ये बाद बुजुर्गों से एहतियात के बड़े वाकयात, वो अनोखे वाकयात मिलते हैं। इहया उल उलूम में एक वाकया याद आ रहा है मुझे कि एक बुजुर्ग अपने जैसे बच्चे के लिए कोई चीज लानी हो तो उसको ये नहीं फरमाते थे कि मैं तेरे लिए फुला चीज ला दूंगा, मिसाल के तौर पर मैं तुम्हारे लिए खिलौना ला दूंगा, ये नहीं कहते थे। हालांकि इसमें कोई शरन हर्ज नहीं है, लेकिन वो एहतियात करते थे कि अगर मैं ला दूंगा कहूंगा और नहीं ला पाया तो, या जहां मैं लेने जा रहा हूं वहां अवेलेबल ना हुआ तो इसलिए वो फरमाते थे बच्चे से कि मैं तुम्हारे लिए फुला चीज ला दूं, सवाल करते थे उससे, उसको हाँ नहीं कहते थे कि मैं ला दूंगा। तो इस तरह वो गुजरते थे। जैसे कि वो कई साल पुरानी बात है कि हमारे यहाँ मकतबतुल मदीना में ये लिखा होता था कि फुला किताब दस्तयाब है या फुला किताब हासिल कीजिए, तो मैंने इनको समझाया यार हासिल कीजिए ना, तुम्हारे पास नहीं हुई तो हासिल कीजिए कहाँ हुआ, तो आप यूं लिखो ना कि यहाँ मिल सकती है, नहीं यहाँ से तलब कीजिए। अब यहाँ ये बरसों का भी ये तलब कीजिए लिखते हैं, यहाँ से तलब कीजिए, यहाँ से मांगिए ये किताब। तो इसमें है नहीं है ये कोई मतलब इकरार नहीं है, ये एक मोहताज जुमला मैंने इनको
अर्ज किया था। अमीर अहले सुन्नत का बयान हुआ था बैन अल-अक़वामी इज्तिमा में, मुल्तान में बैन अल-अक़वामी इज्तिमा के वो याद आ रहा था। वहाँ झूठ के ताल्लुक़ से अमीर सुन्नत ने बयान फरमाया था। वहाँ जो झूठ की मिसालें वो एहतियात बयान की थी ना, उसमें एक मुझे मिसाल याद आ रही थी कि आपने कुछ इस तरह जो याददाश्त के मुताबिक अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने बयान के दौरान कहा था कि अगर मुझे को अभी पूछे, या मुल्तान में थे कि बच्चों के ताल्लुक़ से, घर के ताल्लुक़ से, तो मैं भी यहाँ बैठ के नहीं कहूँगा कि यूँ है यूँ है यूँ है। मैं ये कहूँगा जब मैं चला था तो ऐसा था, क्योंकि इस दौरान मेरा राब्ता ही नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई है। तो उसमें काफ़ी इस बयान के बाद जो शख्सियात का एक हमारा मकतब होता था, वहाँ पर उलमा और दीगर मशाइख वग़ैरह भी तशरीफ़ लाया करते थे। तो वहाँ से उनके जो तासुरात आते थे ना, वो भी बड़े खूबसूरत और बड़े ही वो हैरत वाले तासुरात होते थे कि ये मिसालें, क्योंकि बुज़ुर्गों की तालीमात इस तरह हमारे सामने आई हैं और ये मिसालें दी जाती थी। उसके बाद मुझे भी याद पड़ता है कि हमारे आपस के माहौल में, इस्लामी भाइयों में, इस तरह के लफ्ज़ों का बड़ा इंतखाब शुरू हो चुका था। जब तक मैं था मुझे ये याद है, या आखिरी मेरी इत्तला आने तक तो ये था। तो ये पहले लफ्ज़ नहीं थे, ये उस बयान के बाद हुए थे और काफ़ी एहतियाती गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर वो हालात और वाक़िया चलते 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 आज यहाँ है कि आज कुछ सवाल हो गया तो वो बातें याद आ गई। तो ये एहतियाती अंदाज भी है और इसमें बात औक़ात हो सकता है कि बंदा वाकई ऐसा लफ्ज़ कह दे कि झूठ में पड़ जाए। तो अल्लाह पाक हम सबको ज़बान की एहतियात अता करे। बुज़ुर्गों के ये बड़े प्यारे प्यारे तरीक़े हैं, इन तरीक़ों पर अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। झूठ की एहतियात, मतलब एहतियाती गुफ्तगू के ताल्लुक से मुझे हाजी उबैद रज़ा का वाक़या याद आया। बहुत पुरानी बात है, जब कोई बच्चा हमारे खानदान का किसी मुंडेर पे चढ़ गया था, चढ़ा हुआ था, तो मेरे मुंह से निकला, गिर पड़ोगे? हाजी रजा ने बोला माअज़ल्लाह, गिर पड़ोगे? गिर सकते हो, यूं कहें। हमारे बाप पेटों में फ्री शिप है, इन्होंने तो इनका हाजी रजा का बहुत पुराना ज़हन है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि आम बोलचाल में सच्ची बात है कि एहतियात रह नहीं पाती, मतलब जहन से निकल जाता है, तवज्जो नहीं होती और मुंह से निकल जाता है। तो कोशिश की जाए तो कई मिसालें आप खुद सेट कर सकते हैं। स्कूटर तेज नहीं चलाओ, हादसा हो जाएगा। हो जाएगा ये खबरिया जुमला है ना, आपने एक न्यूज दी, खबर दी, हो जाएगा। बल्कि ये कहा जाए हादसा हो सकता है, खतरा है, खतरे में नहीं डालो खुद को, कि वाकई कंफर्म तो नहीं होता कि हादसा हो जाएगा, हमें तो नहीं पता होता ना। ऐसी बहुत सारी, ये मत खाओ पेट में दर्द हो जाएगा, तो ये भी जुमला कहने के बजाय पेट में दर्द हो सकता है ये कहा जाए, ये मोहतात हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम बात बात में बोल रहे होते हैं, तो इसमें हुक्म क्या लगेगा? तो हम ये कि मोहतात वही है कि हम वो जुमला बोले कि जिसमें हमारी तरफ से कोई खबर ना बनती हो, इम्कान रहता, इम्कान वाला, पॉसिबिलिटी। इसके कई मिसालें मुरतब की जा सकती हैं, लिखने बैठे ना तो कि ये मोहतात है, ये गैर मोहतात है, ये गैर मोहतात, मोहतात, गैर मोहतात, मोहतात, इस तरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये जो जुमला वपा है कि हो जाएगा, गिर जाएगा, हादसा हो जाएगा, इसको भी हम इम्कानी जुमला नहीं कह सकते? हादसा हो जाएगा यानी अगर ऐसा करोगे तो खबरिया जुमला नहीं है, यानी वो कोई कंफर्म नहीं बता रहा कि ऐसा होगा ही होगा। मतलब ये है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो वही अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि चूँकि ऐसा होता रहता है तो तुम्हारे साथ भी मुमकिन है कि ऐसा हो जाएगा। यानी एक तो वही जो आपने पूरी डिटेल शरही एतबार से जो बयान फरमा दी वो फरमा दी, सिर्फ एक इस हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको भी हम इम्कानी जुमला ही कहें। हो जाएगा, ये मेरे को तो समझ में आता है कि ये वो जज्म किया इसने, हो सकता है, ये इम्कानी हो जाएगा, ये इम्कानी है, हो सकता है।
अच्छा हुजूर, बाज़ औक़ात बोलते वक्त बोलने वाले की जो तवज्जो होती है या ज़हन होता है वो उस तरफ, जैसे हमें एक जुमला होता है या वो फ़ोन उठाया नहीं, हमने उनको कहा कि फ़ोन उठाया नहीं के बजाय आप ये कह दें फ़ोन उठा नहीं। क्या उठाया नहीं इससे मुराद है कि उसने देखा और उठाया नहीं। अच्छा, जब आदमी बोल रहा होता है ना उठाया नहीं, तो उसकी मुराद शायद ये नहीं होती होगी कि ये देख रहा है फिर भी उठाया नहीं, लेकिन हमारे बोल चाल में ये चल पड़े हैं। अब हाँ, जब हम इसकी तवज्जो दिलाते हैं ना, वो इसकी जगह वो ये जुमला कह दें उठा नहीं, तो उसको अच्छा बहुत लगता है, यार ये जुमला इससे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उस तरफ भी जब ये कह रहा होता है उठाया नहीं, तो वहाँ भी किसी पर बात करने की उससे शायद मुराद ना होती हो। हमारे यहाँ अमूमन बोल चाल में इस तरह के जुमले हैं कि शायद बोलते हुए उस तरफ, उस मायना की तरफ जिसकी तरफ हम तवज्जो कर रहे हैं उस तरफ उनकी शायद तवज्जो नहीं होती होगी। तो ऐसी सूरत में भी क्या उससे बचना एहतियाती कहलाएगा, या वो भी मतलब उर्फ़ और आदत में जो जुमले चल रहे हैं वो भी मतलब ठीक है चलो चलने दो, और मगर ये कि एहतियाती तदाबीर अगर इस्तेमाल की जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, इसी तरफ जाया जाए। इसमें ऐसा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अब जैसे कि उसको ये बदगुमानी हो रही है कि यार इसने मेरा नंबर देख लिया ना, उठाया नहीं, देख जी मेरा उठाया नहीं, इसने नंबर उठाया नहीं। एक तो ये होता है, एक है कि मुतलकन होता है कि उठाया नहीं, हो सकता है मसरूफ हो, तो अब मसरूफ हो उठाया नहीं इसमें, और मेरे से खारबाजी की वजह से नहीं उठाया, इस दोनों में फर्क हो जाएगा। बाद वैसे ही जनरल आदमी बोलता है कि यार फोन नहीं उठाया, यार इतनी बार मैंने फोन किया इसने उठाया ही नहीं, और वहां बुराई करना मकसूद बाज़ नहीं भी होता, बाज़ होता भी है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, माशाअल्लाह। तो इसमें बेहतर मोहतात वही है कि फोन, मेरा फोन उठा नहीं, अटेंड नहीं हुआ, जैसा ये गालिबन ज्यादा मोहतात है कि किसी फर्द को हमने मुत्तहम नहीं किया इसमें। ये बात फोन उसके बाद होता भी नहीं है, फोन किसी और के पास होता है या कहीं रखा होता है। कभी ऐसा भी होता होगा कि रख के बंदा भूल जाए, कि उसको पता ना चले कि कितनी देर तक फोन से वो महरूम रहता है, ढूंढता रहता है, इस दौरान आया हो। तो इसलिए कुछ भी इम्कान हो सकता है, एकदम किसी के बारे में जहन बना लेना कि मेरा नंबर देखकर इसने अटेंड नहीं किया, उठाया नहीं, ये मुनासिब नहीं है। अब वो यूके में था ना, तो ये मौजू चला था, तो वहाँ इंग्लिश में होता है कि डिडंट रिसीव करके कि इन्होंने उठाया नहीं था या अटेंड नहीं किया था, तो इस तरह की, तो अटेंड ना करना, अटेंड नहीं हुआ, अटेंड नहीं किया, रिसीव नहीं हुआ, रिसीव नहीं किया। जब ये वर्डिंग जब वहाँ चली ना, तो मैंने खुद नोट किया कि यूके के इस्लामी भाइयों में और वहाँ के आम इस्लामी भाइयों में ये मौजू बहुत पसंद किया गया कि वह वाकई मतलब कि किसी पर उस वर्ड से बचा जाए जिसमें किसी पर एलिगेशन आता हो, इल्ज़ाम आता हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। हिलियतुल औलिया जिल्द 2 पेज नंबर 63 के हवाले से उलमा तसव्वुफ फरमाते हैं, उम्दा और फसीह गुफ्तगू करने और मुआमलात को खुश उसलूबी से पाया तकमील तक पहुंचाने का नाम तसव्वुफ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज हम आलमी बदरी मरकज़ फैज़ान मदीना के बाहर खड़े हैं और दावत इस्लामी के शोबे FGRF की एक और शानदार काविश, अल्लाह की रहमत से एक और कामयाबी। आप देख सकते हैं कि एक बहुत शानदार मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट, एक ऐसी वैन है जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह FGRF की तरफ से अहलियान पाकिस्तान को पहला तोहफा है। हम पहले अंदर से दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और फिर अभी अहले सुन्नत से कुछ मदनी फूल भी लेंगे और दुआ भी लेंगे। आइए चलते हैं अंदर इंशाल्लाह। रिजवान भाई इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस वक्त अब इस वैन के अंदर है, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब तशरीफ रखेंगे, साहब आप भी बैठेंगे। अल्लाह की रहमत से इस वैन की बहुत सारी खुसूसियात हैं। मैं पहले आसान लफ्जों में बयान कर देता हूँ कि ये ऐसा मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट है कि जिसमें मेल और फीमेल, मर्द और खवातीन के लिए, इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों के लिए डॉक्टर्स की फैसिलिटी होगी कि वो जहाँ जाकर
یہ وین کھڑی ہو جائے گی گویا یہ مدنی کلینک بن جائے گا. اور سب سے خوبصورت بات شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے میں بھی دکھاؤں گا کہ اس میں باقاعدہ پردے کا بھی انتظام ہے. کیمرہ مین اگر یہاں آ جائیں رضوان بھائی ذرا بتائیے گا کہ یہ پورا پارٹیشن ہو جائے گا اور اس پارٹیشن کے ذریعے مرد و خواتین کا کلینک الگ الگ ہو جائے گا. اور پھر اسلامی بہنوں کے لیے انٹرنس بھی الگ ہوگا, اسلامی بھائیوں کے لیے انٹرنس بھی الگ ہوگا. اور کسی بھی ایسے علاقے میں کہ جہاں ہاسپٹل نہیں ہے, کلینک نہیں ہے, علاج کی سہولت کی ضرورت ہے, تو مرد و خواتین کے لیے یہ الگ الگ کلینک کا کام کرے گا. اسی وین کے اندر یہ فیسلٹی بھی موجود ہے کہ اگر تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے ہمیں بلڈ کیمپ لگانا ہے, بلڈ کلیکٹ کرنا ہے, تو بلڈ کلیکٹ کرنے کی بھی فیسلٹیز اس کے اندر موجود ہوں گی. اور اسی طرح ہم نے پلان یہ کیا ہے, کیونکہ یہ انشاءاللہ اب یہ موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ ہے, تو اب پاکستان میں اللہ نہ کرے کہیں بھی کوئی آفت آتی ہے, جیسے پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا, زلزلے کے معاملات ہوتے ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب میڈیکل کی ضرورت ہے تو یہ پورا ہیلتھ کیئر یونٹ اٹھ کے اس علاقے میں چلا جائے گا. ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ سیلاب کے علاقوں میں ہماری جو اسلامی بہنیں تھیں, جو وہاں خواتین تھیں, جو پریگننٹ تھی, جو حاملہ تھی, ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہا تھا پردے کے حوالے سے. لیکن جب ہماری لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ یہ پورا ہیلتھ کیئر یونٹ وہاں پہنچ جائے گا تو پردوں کے تقاضے کے ساتھ, شریعت کے تقاضے کے ساتھ خواتین کو علاج کرنا ان ایسے ایریاز میں کہ جہاں کلینک اور ہاسپٹل بھی نہیں تھے, پانی بھرا ہوا تھا, انشاءاللہ یہ وہاں پہنچ کر ان کی مدد کرے گا. اور شہر کراچی کے لیے ہم نے الحمدللہ ہماری مجلس کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے ہفتہ وار دن باندھ کر غریب علاقوں میں, جیسے کراچی کے کئی علاقے ابھی اس کو ہم فائنل کر کے اناؤنس کر دیں گے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کورنگی ہے, لانڈی ہے, ملیر ہے, اورنگی ٹاؤن ہے, ایسے بہت سارے ایریاز ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اب ہفتہ وار یا 15 دن کا کوئی دن باندھیں گے اور اس دن وہ کلینک یا ہمارا مدری ہیلتھ کیئر یونٹ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا اور وہاں کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ ڈاکٹرز کی فیسلٹیز ہوں گی. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت شاندار ایک اللہ کی رحمت سے کاوش ہے. اور میں قبلہ امیر اہل سنت سے چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, جو ہمارے ساتھ اس طرح کا سپورٹ کرتے ہیں, ان کو دعا سے بھی نواز دیں. مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا ہماری اس مجلس کے جو ذمہ دار ہیں, ذرا مائک دیجیے گا, کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ٹیکنیکلی اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کو باقی بہت ساری چیزوں سے ممتاز کرتی ہیں. تو رضوان بھائی کچھ اس بارے میں بھی بارے ناظرین کو بتائیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. اچھا, اس میں جس طرح انشاءاللہ بھی ڈاکٹر سلمان بھی وہ آپ کو مطلب میڈیکلی سائڈ پہ بھی بتائیں گے کہ اس میں ہمارے اور کیا کیا فیسلٹیز ہم اس سے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپریشنل طور پر ہم نے اس میں جو فیسلٹیز رکھی ہیں کہ اس میں ہم نے ڈاکٹرز کی اور میڈیسن کی کیئر کے لیے ہم نے اس میں اے سی کا انتظام کیا ہوا ہے, اس میں فریج اندر موجود ہے, واش روم ہم نے اس کے اندر بنایا ہے. جو پاکستان میں ہمارے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس میں جنریٹر اور سولر سسٹم ان دونوں کی فیسلٹیز ہم نے رکھی ہے تاکہ ہم پاور کو بھی بہتر انداز سے اس کی کنزمپشن کو ہم منیمائز کر سکیں. اس کے علاوہ اس میں جو سہولیات ہیں ہم نے سیکیورٹی سسٹم رکھا ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں جو ان آؤٹ ان حالات میں کہ جہاں پر ایسی جگہوں پر ہم جاتے ہیں کہ جہاں پر کچھ خطرات بھی ہوں تو ہم نے اس کی بھی مینیج کرتے ہوئے تمام سیکیورٹی نظام بھی الحمدللہ ہمارا پورا اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو امید ہے کہ امیر اہل سنت اس میں ہماری کچھ رہنمائی بھی فرمائیں گے اور دعاؤں سے بھی نوازیں گے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو آپ کے لگائے ہوئے گلشن کو اور ترقی عطا فرمائے اور FGRF جو کام کر رہا ہے اللہ اس میں بھی خوب برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر سلمان آپ کچھ کہنے جا رہے تھے. اس طرف ہم بیٹھ جاتے ہیں, ادھر آ جاتے ہیں کیمرہ میں. ہماری آواز آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی آپ کو؟ سلمان صاحب آپ کچھ فرمائیں گے, حاجی صاحب فرما رہے ہیں, آپ کچھ بتائیں اس بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آ رہی ہے, بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, اگر کیمرہ مین عبدالحبیب ہے, کیمرہ مین اس کا پورا اوور ویو کیمرے کے ذریعے اس کا پورا ویو دکھا دے. ابھی جیسے کہ جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں نا تو صرف وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اگر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اگر کیمرہ مین پوری, کیونکہ آپ تو ہمیں نہیں دیکھ پا رہے نا, تو چونکہ ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ایک اگر وین کا ایک ویو پورا اگر دکھا دیا جائے کیمرہ مین کے ذریعے تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا اور معلومات کا باعث بنے گا. سارے سلیب سائٹ پہ ہو جائیں. نگران شورا کا کہنا یہ ہے کہ پوری وین کا ہمیں ویو ناظرین کو دکھا دیا جائے, تو آپ تھوڑا سائٹ پہ ہو جائیں, پورا کیمرہ مین جو ویو دکھا دیں کہ یہ کتنی خوبصورت کتنی مینیجبل وین ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی مزید رہنمائی لیتے ہیں کہ میڈیکلی انشاءاللہ کیا کیا اس میں چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. جی یہاں آ جائیں, آپ یہاں آ جائیں, یہ دکھائیں ذرا. جی دکھائیے. یہ ہماری فارمیسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہاں سے دوائیاں دی جاتی ہیں, یہ ونڈو بنی ہوئی ہے. تھوڑا مجھے تھوڑا اب یہیں سے فارمیسی کی دوائی, جی یہ آپ مجھے تھوڑا میرے ساتھ فالو کرتے رہیں گے نا عبدالحبیب بھائی تو تھوڑا اچھا رہے گا. یہ فارمیسی ونڈو ہے, مطلب میڈیکل کے دوائیں وغیرہ, تو یہ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی اندر علاج کے لیے نہیں بھی آتا اور صرف دوائی لینا چاہتا ہے تو ضرورت کی دوائیں باہر سے بھی لی جا سکتی ہیں.
ठीक है जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। और ये दोनों तरफ है, लेडीज के लिए भी है, इस्लामी बहनों के लिए भी है, इस्लामी भाइयों के लिए भी। मस्जिद दिखाइए। ठीक है, और दिखाएं। ठीक है जी जी। इसमें फ्रिज भी है, इसमें एयर कंडीशन भी है, इसमें सिक्योरिटी सिस्टम भी है, और इस वैन के बाहर बहुत खूबसूरत एलसीडी भी लगी हुई है, जहां दावत इस्लामी की और एफजीआरएफ की जो काविश है उसको हम वीडियो के जरिए भी चला सकेंगे, ताकि जब ये वैन पूरे शहर में मूव करेगी तो एक खूबसूरत तशहीर भी साथ साथ जारी होगी। ठीक है, ये मस्जिद दिखाएं, थोड़ा स्पीड में चला दें। जी डॉक्टर साहब, अब आप कुछ थोड़ा सा मेडिकली। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी जी आप डॉक्टर साहब की तरफ आ जाएं। जी डॉक्टर साहब जल्दी से। जब जैसे शुरू में तो आपने बयान फरमा दिया कि ये मेडिकल के हवाले से हम लोग तो ये कैंप करने चले जा रहे हैं। जैसे सैलाब ज़दगान के अंदर हमें तजुर्बा हुआ था, बहुत सारे ऐसे इलाकों में हमें जाना हुआ जहाँ पे एक्सेस नहीं था हेल्थ केयर का, तो अल्लाह का करम है अब यहाँ पे हमारे पास मेडिकल की सर्विस मौजूद है, और इसमें हमारे पास डायग्नोस्टिक सर्विसेज मौजूद है कि अगर अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल होगा अल्लाह ने चाहा तो, और एक्सरे की सर्विस भी इसके अंदर मौजूद होगी। और अगर खुदा न खासा अगर डिजास्टर कहीं पे भी आ जाता है तो डिजास्टर की जगह पे ये मौजूद होगी, तो इमरजेंसी सर्विसेज जैसे ये शफात वगैरह खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, तो सेम वे हम लोग इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, और साथ हमारे एम्बुलेंस मूव कर रही होगी। अगर किसी पेशेंट को कोरोना खतरनाक कोई मसला हो गया तो उनको हम एम्बुलेट करके मूव करेंगे, ये अपनी जगह कायम रहेगा, हॉस्पिटल काम करेगा, जख्म हुआ वो प्रॉब्लम हुआ वो सारी चीजें भी हो जाएगी, सब कुछ ट्रीटमेंट मैनेज करने का। फर्स्ट एड फैसिलिटी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। अल्लाह ना करे कहीं प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के हवाले से अगर खवातीन को प्रॉब्लम हुई उसके लिए बड़ी जबरदस्त सहूलत हो जाएगी। और फिर उसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पे, अब ऐसे इलाकों में ऐसा आपको भी पता है, पानी की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर डायरिया हो रहे होते हैं, बच्चे बड़े बीमार हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह डेली सूरत में डेली की जो है ट्रीटमेंट का माहौल हो रहा होगा। तो अल्लाह ने चाहा तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन जाहिर है कि ये एक काफी नहीं है। हमारा यही इरादा था कि एक हम पहले बना लें, फिर दुनिया भर के नाजरीन को कहें कि ये है आपका एफजीआरएफ, ये है आपकी दावत इस्लामी। हमने इसका एक एस्टिमेट बनाया है, तकरीबन $40,000 की ये एक वैन बनती है, पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ये वैन बनती है। लेकिन इस वैन को रन करने के लिए माहाना $2,000 यानी तकरीबन 6 लाख रुपए महीने के भी दरकार हैं, तब जाके जाहिर इसमें डॉक्टर होंगे, ड्राइवर होंगे, इसका डीजल होगा, इसके सारे मामलात होंगे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो लोग जो मेडिकल पर तवज्जो रखते हैं, इलाज मुआवजे की फिक्र करते हैं, इलाज पर खर्च करते हैं, तो आपका एफजीआरएफ, आपकी दावत इस्लामी ये काम कर रही है। तो और इस तरह के जो लोग इसमें काम करना चाहें तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये अपने महरूमीन के लिए ये समझिए कि एक बहुत अच्छा इसाले सवाब भी हो जाएगा, ना जाने किसका इलाज हो जाए, किसकी दुआ लग जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब मैं गुजारिश करूंगा कि अमीर अहले सुन्नत है कि हमें दुआओं से भी नवाजें और मदनी फूल से भी नवाजें। बिलखुसूस मैं चाहूंगा उनके लिए दुआ करें जिन्होंने हमें ये वैन पूरी बना के दी। अल्लाह उनके रिज़्क़े हलाल में, कारोबार में बरकतें दे और उनको खूब इसकी बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह ये चलता फिरता दवाखाना वो जबरदस्त है। अल्लाह पाक हमारे एफजीआरएफ को सलामत रखे। दावत इस्लामी का बहुत प्यारा इदारा है कि जो गरीबों की बड़ी दुआएं ले रहा है। आमीन आमीन। और जिन्होंने वाकई ये मोबाइल क्लिनिक बनाकर दी, चलता फिरता दवाखाना, तो ये अल्लाह करीम उसको उम्र भर चलता फिरता रखे, किसी का मोहताज ना करे, सिर्फ अपने दर का मोहताज रखे और उसके रोजी रोजगार में खैर बरकत दे। और अल्लाह करे कि ये एक वैन न रहे हमारे पास, वो जल्दी जल्दी 12 वैन बन जाए। 12 वैन, 12वीं शरीफ का महीना भी आ रहा है, तो 12 वैन तो अल्लाह करेगा तो बहुत सारे इलाकों को, बल्कि बहुत सारे शहरों को हो सकता है कि कवर कर लें। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें पैसा लोग खर्चा करते करने वाले, जिनको मतलब एतमाद हो जाता है ना कि भाई ये काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह इससे लोग आगे बढ़ेंगे मुखय्यर हज़रात, और इंशाल्लाह ये सवाब का काम करेंगे। आज कोई बीमार है, कल हम भी तो बीमार हो सकते हैं, आज किसी की माँ बीमार है, हमारी भी तो माँ बीमार हो सकती है। तो अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। बहुत अच्छा काम है, बहुत नेक काम है। कार्य खैर अगर जिसको बोलते हैं तो ये बेहतरीन एक कार्य
कार खैर है। या अल्लाह पाक जो हमें वैन दिला दे या इसका माहाना खर्चा ही उठाने की अपनी जिम्मेदारी ले ले, इससे पहले वो दुनिया से ना जाए जब तक तेरे महबूब का जलवा ना देख ले। और या अल्लाह पाक तू इससे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा, इसकी और इसके माँ बाप की भी हिसाब मगफिरत कर दे। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। हुजूर आज सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ एक और ऐसे इस्लामी भाई हैं जो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, और मैं जब उनके पास जाता हूँ ना वो आपका जिक्र बड़ी मोहब्बत से करते हैं, बल्कि मुझे बताते हैं कि मेरी ये दाढ़ी भी हजरत साहब ने रखवाई है। तो अब आप ही उनसे बात करें। हमारे हाजी साहब, हाजी अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ हैं। सब अमीर अहले सुन्नत आपको देख भी रहे हैं, आपकी आवाज़ भी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम हजरत खबर रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेचाना मैं तो करीब 60 साल के हो गए, 60 साल से पुराना आपको देखा हुआ है बचपन में, और बहुत तलब थी कि आपकी ज़ियारत हो जाए, तो इंशाल्लाह कराची आएंगे तो आप मौका देंगे तो ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत दुआ जी खास दरखास्त है, खबर नहीं और क्या करें। अल्लाह पाक के सलामत रखे। FGRF में अच्छी भी भी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सबके इंशाल्लाह जहाँ दुआ करा तो अल्लाह पाक मरने से पहले ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। थी नहीं तरकीब बननी इंशाअल्लाह। बारों मदनी मुज़ाकरा भी तो अच्छी रहें इंशाअल्लाह। आइंदा शनिवार तो कराची में जाए मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि चांद रात भी होए। अच्छा इंशाअल्लाह चाहता मौको और क्या करना और क्या हजरत और क्या करना और क्या हाजी मजीद आज जो ना चुनो तो आइए हौसला पस्ती नो करो ताऊ आगे वैसे घूमी रही हो जाएगा विनन नहीं दियो भी क्या थी। अच्छा ये बाबा हाजी अब्दुल हाजी सचना भाई हाजी अब्दुल मजीद परदेसी हाजी अब्दुल मजीद परदेसी हो। हाजी अब्दुल समझ नंढा बा ताजे घरे भी आवियो हुए परदेसी। जी हाँ जी आजे घरे आवियो यहाँ तो जी हाँ जा अल्लाह अमीन मिल्लत रोकाना वाला जी हजरत हाजिर थी हुई। अल्लाह अल्लाह अच्छा ने माशाअल्लाह आज अमीन बा बाणा बैठो बाय के शर्म अची आई ऐसा मैं चले आई बदे बच्चा बच्चा हुआ तेरे तेरे नंदा नंदा हुआ बदे अल्लाह जज़ाकल्लाह पांचो तो खानदानी सोची है ना माशाअल्लाह ना ना तो गोगोली से अच्छा है ऐसा गोगोली में जगह रचना भाई गोगोली में जी माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा या सय्यदी, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह के बरकत दे, दुआ कीजिएगा अल्लाह आपका साया सलामत रखे और दावत इस्लामी के इस गुलशन को मजीद तरक्की अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। जारी रहेगा इंशाअल्लाह मसलके रज़ा मरहबा मरहबा नग़्मे रज़ा मरहबा मरहबा जलवे रज़ा मरहबा मरहबा रज़ा 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 अहमदे रज़ा। मोहम्मद का उजाला नाम
ताल पर नूर की बरसातों मुर्शिदियत ताल पर नूर की बरसातों खत मेरा सल मक्की मदनी कौन में तुमसा कोई नहीं ये खत मेरा सल मक्की मदनी या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला मैं आँख देख लूं आँख से काबा तेरा लाला मुझे माफ करते लाला मुझे माफ करते शुक्रिया बापा शुक्रिया दावत इस्लाम हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती इत्तेफाक है मैं खातम नबीन ला नबिया बाती माफी नबियों में बात कोई नबी नहीं है मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी आमना का लाडला सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी माशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं मरहबा अल्लाह पाक सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन सारे बच्चों को माँ बाप दादा दादी नाना नानी और ख़ानदान वालों समेत हज नसीब करे बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि अगर साफ में कोई तिनका वगैरह पड़ा हो तो उसको नमाज के दरमियान में उठा सकते हैं या नहीं जवाब इनायत फरमा दीजिए जज़ाकल्लाहु खैरा तिनका जी टूथपिक जी जैसे होता है इसको उठा ले नमाज में अब ये अमल कसीर के साथ उठाएगा तो नमाज टूटेगी अमल कलील के साथ उठाना मुमकिन है तो नहीं टूटेगी लेकिन अगर बिला वजह किया तो गालिबन कराहत तो आएगी कि अब बस फेल हुआ नहीं है मतलब बेकार फेल हुआ जरूरत नहीं थी और उठाया और नमाज अगर मुफीद है नमाजी के लिए तो ये इस तरह का बस फेल जो है ये अमल कलील तो ये फिर वो उसमें कराहत वगैरह की सूरत नहीं होती अगर नमाजी के लिए मुफीद है तो इस तरह की इसकी तफसीलात हैं सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अहम ये लफ्ज अहम बहुत अहम है अहमियत किस चीज की है हमारी जिंदगी में देखिए वैसे तो ये दो अल्फाज हैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट अर्जेंट से मुराद है a thing which needs or immediate action and attention वो काम जिसको फौरी तवज्जो चाहिए फौरी वो करना है आमतौर पे मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसको अगर लेट किया जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और इम्पोर्टेंट वो काम है जो थोड़ा अगर लेट कर दिया जाए डिले कर दिया जाए तो इतना नुकसान नहीं होता यहां पर देखना ये है कि मेरी जिंदगी में अहम क्या है कौन सा रिश्ता अहम है कौन सा किताब अहम है कौन सी जगह अहम है कौन सी बात अहम है अहमियत किस चीज की है अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि आज जब हर तरफ क्लटर बहुत ज्यादा है हर तरफ से एक बमबारी हो रही है इंफॉर्मेशन की मालूमात की बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है अहमियत का म्यार क्या होगा कौन सी चीज ऐसी है जिसको सबसे पहले सब कुछ हटा के मैंने अहमियत देनी है और उसको सबसे पहले करना है उसमें हर एक की अपनी अपनी जरा सोच होती है किसी को मतलब यानी कि दुनियावी खबरें अच्छी लगती है किसी को दीनी खबरें अच्छी लगती हैं किसी को दुनियावी मालूमात जो होती है किसी को मेडिकल की मालूमात साइंसी मालूमात
तो कोई मजहबी मालूमात, ये अपने अपने हिसाब से आदमी इसको इंतखाब कर सकता है। लेकिन जाहिर है कि इस तरह की मालूमात के लिए सोशल मीडिया अब यूज तो हो रहा है, मजबूरी है, लेकिन ये मतलब एथेंटिक नहीं होता, भरोसे वाला नहीं होता। इसमें मसाइल तो होते हैं तरह तरह के, मतलब गलत सलत, मतलब बहुत कुछ होता है इसमें। और जो इसके यूजर हैं वो मेरी बात को समझते भी होंगे और इनको भी खटके होते रहते होंगे कि यार पता नहीं अब मैं जो इसको उठा तो रहा हूँ, आगे बढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन ये दुरुस्त है या नहीं है, किसी ने वैसे अंधेरे में तीर तो नहीं छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया में ज़ाहिर कोई मुफत्तिश तो है नहीं, न कोई उलमा की सरपरस्ती हासिल है, न कोई इस तरह का मामला तो कुछ भी नहीं है। तो जो इसके जो भी उसूल हों अपने, लेकिन वो मजहबी उसूल नहीं है, तो इस तरह मतलब ये कि इससे आदमी करे कि अभी तो सारे डॉक्टर्स हों या मतलब साइंटिस्ट हों, जो भी हो, सब इससे ताउन तो हासिल करते होंगे सोशल मीडिया से। अभी ये कि आसान तरीका ही है, अब बड़ी किताबों में जो मालूमात लिखी हुई है वो काबिल एतमाद सही, लेकिन अब इतना टाइम कहाँ से लाए? जब ये आसान आला नहीं था तब टाइम था लोगों के पास, उसको मतलब उससे इस्तेफादा करते थे और वो शायद मालूमात ज्यादा मजबूत होती हो। लेकिन अब ये कि आसानी के होते हुए दुश्वारी की तरफ कैसे जाए आदमी, कि 1 घंटे में जो चीज मिलेगी वो 1 मिनट में सर्च हो जाती है, तो वो 1 मिनट पर ही डन करेगा आदमी। तो ये समझ में आता है कि सोच समझ कर और अपने इंतखाब में से भी अच्छा इंतखाब करे, और वो इंतखाब करे जिसको शरीयत का प्रोटेक्शन हासिल हो। कि बाद दुनियावी मालूमात ऐसी होती हैं जिनको यूं शरीयत का प्रोटेक्शन मिल सकता है कि वो नाजायज चीजें उसमें नहीं पाई जाती, दुरुस्त होती हैं, तो उसमें भी कोई हरज नहीं होती, जरूरत अगर आदमी उससे इस्तिफादा करे तो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फेसबुक के ज़रिए एक सवाल आया है, ये पूछ रही हैं कि क्या औरतें इस्तिखारा कर सकती हैं और इनका इस्तिखारा करना कैसा है? कोई हरज नहीं है, मखसूस मर्दों के लिए तो नहीं है ये, औरत मर्द जो भी करे इस्तिखारा, जबकि वो इल्म हो इसका इस्तिखारे का, जानती हो, करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। लुकमान अली भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी नाफ का मसला है और नाफ ऊपर पेट पर आ जाती है और इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा हो या कोई अमल हो तो वो इरशाद फरमा दें। नाफ चेक करने का एक आसान तरीका ये है कि आया वो नाफ का मसला है भी या नहीं। ये जो दुआ, आप यूं दुआ की तरह हाथ ले लें, अब ये जो हाथ है ना, इनकी सारी लकीरें, ये लकीरें, ये लकीरें, ये उंगलियों के जो पोरे होते हैं, इन सब की लकीरें है ना, इन लकीरों को इधर की लकीर से यूं मिला ले, ये हथेली की लकीरों को। अब ये सारी लकीरें जो है ना, ये एक ही साथ मिल जाएंगी। इस वक्त मेरी एक साथ मिली हुई है, तो नाफ प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस टेस्ट, इस तशखीस के हवाले से कि नाफ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अगर ये लकीरें कोई ऊंची नीची हो जाएगी ना, तो एक भी अगर ऊंची नीची हो गई, बिल्कुल सीध में मिली नहीं, तो इसका मतलब नाफ का प्रॉब्लम है। अब ये कि नाफ के तो बहुत सारे इलाज हैं, डॉक्टरी इलाज भी हैं, लेकिन डॉक्टरों का प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर नाफ को तस्लीम ही नहीं करते कि नाफ की वजह से कुछ होता है। जो मेरी पुरानी मालूमात अब ये मान गए हो तो पता नहीं है मुझे। कोई डॉक्टर होगा तो पैगाम दे देगा, पैगाम देते हुए डरेगा ना। ये बिल्कुल इस सामने ही हमारा तजर्बा है कि नाफ उतरी है नहीं उतरी, ये इस टेस्ट से भी पता चलता है। और भी टेस्ट इसके होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, पता चल जाता है। तो नाफ उतरने के लिए ये जो मैंने कहा अपना तजर्बे का इलाज है वो ये जो बता रहे हैं हथेलियां, इनकी बिल्कुल देखो लकीरें मिल रही हैं, इनको नाफ प्रॉब्लम इस हिसाब से नजर नहीं आ रहा हथेलियों में।
किसी को नाफ का प्रॉब्लम होगा तो वो भी हथेलियां दिखाएगा ना, तो उसके सामने आ जाएंगी लकीरें कि वो ऊपर नीचे होंगी। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है गालिबन, माशाअल्लाह। तो इसका यानी कि आयतें जो है ना, पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 और 8, ये रोजाना एक बार नाफ पर हाथ रखकर अव्वल आखिर एक मर्तबा दुरूद शरीफ के साथ पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 और 8 ये 7 बार पढ़नी है। और अब नाफ पर दम कर दीजिए। नाफ कपड़े में छुपी होनी चाहिए, जैसा अभी पहने हुए कपड़ों पे मैंने नाफ पे हाथ रखा हुआ है, तो यूं मतलब ये कि ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह करीम एक बार में ही आप सुकून महसूस करेंगे, वरना 2 बार 3 बार या रोज का 1 बार आप करते रहेंगे ना, अल्लाह करेगा तो नाफ सही हो जाएगी। लेकिन ये पढ़ना आता हो, कुरान करीम इसमें खुद अपना पढ़ने का लिखा है, खुद पढ़े, कोई दूसरा पढ़े, जैसे लिखा नहीं है इसमें। वरना ये कि जिसको ना आता हो तो दूसरा पढ़ ले, तो अगर नहीं आता तो दूसरे से इसी तरह पढ़वा लें। आप अपना हाथ नाप पर रखें और वो दूसरा पढ़े इसको, और वो पढ़ के आप हाथ हटाने और दम कर दे, कपड़े नहीं हटाने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये मदनी पंसूरा पेज नंबर 239 239 पर ये अमल लिखा हुआ है। नाफ उतर जाने का रूहानी इलाज ये आ गया भाई, माशाअल्लाह। ये वही है सूरह आले इमरान वाला। ये मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था, अच्छा अमल है, ये तजर्बा है, कई बार मैंने इस्तेमाल किया इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज आपके यहाँ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है, माशाअल्लाह। आप आला हज़रत अलैह यौम रज़ा मना रहे हैं। क्या ये अच्छा हुआ कि आपकी आवाज़ से कुछ आला हज़रत की मनकबत के 1-2 अशार भी हम सुन लें, आपके साथ हम यौम रज़ा मनाएं। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म इनका दरख्त शाह है आज भी। किस तरह इतने इल्म के दरिया बगा दिए, किस तरह इतने इल्म के दरिया बगा दिए। उलमाए हक की अक्ल तो हैरान है आज भी, मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए इल्मो अमल पे आप
آپ کا احسان ہے آج بھی، علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کچھ رضا کی باتیں تو سنائیے۔ میرا تو کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا، نہ کوئی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے آج خصوصی جس میں سرکار اعلی حضرت کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو۔ الحمدللہ رضا ہے تو ہمیں صحیح بات ہے، میں تو رضا کے ٹکڑوں پہ ہی پلتا ہوں، اور میری وجہ شہرت، میری وجہ عزت بھی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات عام کرنے کے سبب ہے، اور یہ تعلیمات ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اعلی حضرت کی تمام تر تعلیمات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ کوئی ہی نہ سمجھے کہ کوئی الگ شعبہ ہے اور یہ الگ شعبہ ہے قرآن و حدیث کا، نہیں، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں انہوں نے، خلاصے کر کے، وضاحتیں کر کے، تفسیریں کر کے، شروحات کر کے، تو اس طرح مطلب یہ کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مجھے اچھے لگے الحمدللہ۔ اب بہت زمانہ ہو گیا دعوت اسلامی کا تو تصور بھی نہیں تھا، تو ان کا دامن تھام لیا اللہ کی رحمت سے، تو آج مل کر بیٹھے ہیں، رضا 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 کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ خائف کبریا رضا 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 رضا، عاشق مصطفیٰ رضا 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 رضا، عالم باعمل رضا 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 رضا، مفتی بے بدل رضا 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 رضا، رہبرو رہنما رضا 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 رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ My name is Iban Raza. I read in class KG in Darul Madina Sahiwal campus. نیزی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی صفات پر لاکھ سلام، تم کیا گئے رون کے محفل چل گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور آئندہ ہفتہ جو ہے نا انشاءاللہ الکریم، یوں تو 29 سفر شریف ہے آئندہ ہفتہ، لیکن ہو سکتا ہے چاند ہو جائے، زیادہ چانس لگتا ہے کیونکہ پچھلا 30 کا ہوا نا، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے مدنی مذاکرے کنٹینیو ربیع الاول شریف کے ہوتے رہیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ امید ہے قوی نیت تو یہی ہے کہ میں انشاءاللہ کراچی میں ہی ہوں گا، فیضان مدینہ میں انشاءاللہ، اور مرحبا کی خوب دھومیں مچائیں گے، چاند انشاءاللہ کراچی میں دیکھنے کی نیت ہے انشاءاللہ الکریم، اور خصوصی مدنی مذاکروں کی بھی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ، اور سحریوں کے بھی سلسلے ہوں گے۔ ہاں، خوش نصیب عاشقان رسول 12 روزے رکھتے ہیں، 12 آپ بھی رکھیں اگر آپ کو طاقت ہے، ہمت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو 12 رکھیں تو ممتاز کیٹیگری، اور اگر 12 نہیں رکھ پاتے تو 7 رکھ دیں، چل مدینہ گروپ بھی 7 ہیں تو 7 رکھے تو بہتر، اور 7 بھی نہیں رکھ سکتے 3 تو رکھ لیں، 12 دن کے اندر 3، تو یہ ہو جائے گا مناسب، گڈ بیٹر بیسٹ۔ تو یہ کارکردگیاں بھی آپ کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، اپنے اپنے ذمہ داروں کو پہنچانی ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی روزانہ رات کو مدنی مذاکرے میں مناسب وقت پر یہ کارکردگی بیان کی جائے گی۔ اور ایک یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ 12ویں شریف کا مہینہ تو درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے نا، اللہ توفیق دے تو روز کے 1200 درود شریف بھی پڑھ لیں، اس کی بھی کارکردگی دیں، روزوں کی کارکردگی الگ سے ہوگی، اور 1200 درود شریف پڑھنے کی کارکردگی الگ ہوگی، کیونکہ بعض ہوں گے صرف روزے رکھیں گے
दुरूद शरीफ पढ़ना वो हो सकता है कि ना पढ़ पाए, और बाद होंगे कि दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, रोजे नहीं रख पाएंगे। तो इंशाअल्लाह इन दोनों की हम कारकर्दगियां भी पेश करते रहेंगे और इंशाअल्लाह दुरूद और सलाम के गजरे बारगाह रिसालत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आपको अभी हम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अभी हम सूरह इखलास का जो हदफ दिया गया था और सूरह इखलास की तरगीब दिलाई गई थी, जी जी, उसके बयान हम अर्ज करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि अगर इसको पहले देख लें आशिकान रसूल, और हो सकता है कि पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक या पूरे माह रबीउल अव्वल में हो सकता है कि 12 अरब दुरूद पाक पढ़ने का अगर आपकी तरफ से हदफ मिल जाए, तो जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनों ने जो सूरह इखलास पढ़ने के ताल्लुक से अपना जज्बा बताया, तो हो सकता है कि दुरूद पाक पढ़ने के ताल्लुक से भी एक ज़बरदस्त जज्बा आ जाए। पहले देखते हैं सूरह इखलास के ताल्लुक से क्या कारकर्दगी रही। इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की तरफ से सूरह इखलास की कारकर्दगी जो कि पढ़ी गई। इस्लामी भाइयों की तादाद पाकिस्तान 24 करोड़ 22 लाख 29 हजार 460, 24 करोड़ 22 लाख 29,460। इस्लामी भाइयों की तादाद ओवरसीज 14 करोड़ 67 लाख 10,439, 14 करोड़ 67 लाख 10,439। इस्लामी बहनों की तादाद पाकिस्तान 56 करोड़ 90 लाख 59,784, 56 करोड़ 90 लाख 59,784। इस्लामी बहनों की तादाद ओवरसीज 15 करोड़ 25 लाख 31,056, 15 करोड़ 25 लाख 31,056। टोटल मौसूल कारकर्दगी 1 अरब 11 करोड़ 5 लाख 30,739, 1,110,000,000 5 लाख 30,739। सुभान अल्लाह। 25 करोड़ की बात की थी तो 1 अरब और तकरीबन 12 करोड़ तक ये पहुंच रहे हैं, 11 करोड़ के कुछ ऊपर हो गए। अभी टाइम बाकी है, जी जी इंशाअल्लाह अभी और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो यूं आप चाहते हैं कि ये रबीउल अव्वल शरीफ में 12 अरब दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप ये चाहते हैं? अगर हम पढ़ने में कामयाब हो गए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। निगाह करम पढ़ के जिनके पर दरूद पाक पढ़ रहे होंगे तो दुनिया और आखिरत में बेशुमार भलाइयाँ, और जो इस वक्त हमारे माशरे की जो सूरत हाल है, जो परेशानियां हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे दुखों को, हमारे गमों को दूर करने के लिए दरूद पाक पढ़ना ये बेहतरीन एक तरह वो इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा होगा। अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी भरपूर तहरीक मिल जाए कि तमाम आशिकान रसूल, आशिकान मीलाद, पूरे माह मीलाद में बारगाह रिसालत में कमो बेश 12 अरब दुरूद पाक पढ़ने की अगर तरकीब रखें तो माशाल्लाह आपने जो रोज़ के 1200 दुरूद पाक का फरमाया है कि पढ़ा जाए, तो अगर इसको भी लिया जाए या कम ज़्यादा जो भी किया जाए तो दुनिया भर में आशिकान रसूल के क्या कहने हैं, अगर पढ़ना शुरू कर दें और ज़िम्मेदार निगरान इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें इसको सीरियस ले लें तो अल्लाह पाक ने चाहा तो रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम 12 अरब दुरूद पाक का नजराना हाजिर कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। चलो अर्ज कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। जो कोई माह रबीउल अव्वल शरीफ में 12, 7 या 3 रोजे रखे और रोज के 1200 दुरूद शरीफ या तो पढ़े या दोनों ही काम करे, रोजे और दुरूद शरीफ के, इन सबको दोनों जाके भलाइयों से माला माल फरमा और दुरूद और सलाम जिस आका पर पढ़ते हैं उसका ख्वाब में जलवा दिखा, मरते वक्त भी इनकी ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, ये तो 1200 दुरूद शरीफ बोले ना मैंने, है ना, ये तो हो गया, लेकिन ये 12 अरब के लिए अरे एक आदमी तो पढ़ नहीं सकता जी, ये तो सारे मिलकर पढ़ेंगे तो होगा। तो हिम्मत कीजिए 1200 करके, या आप बढ़ाते रहे 1200। तो मैंने कहे ना, अब मैंने देखा है कि मैं जो कहता हूँ तलब से भी सिवा देते हैं,
हैं? भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मेरे बच्चों ने कहा और क्या चाहिए। तो यूं मतलब ये ज्यादा देते हैं, 25 करोड़ तो ये 1 अरब से ऊपर निकल गए। इसी तरह वो यासीन शरीफ में भी मैंने डर डर के 72,000 कहे थे शायद, और पता नहीं लाखों तक निकल गए। तो ये माशाअल्लाह ये हमारी एक माहौल बना हुआ है, दावत इस्लामी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको सलामत रखे। तो ये पढ़ते हैं। तो अब देखें अब कौन सा इलाका ज्यादा कारकर्दगी देने में कामयाब होता है। दारुल मदीना का 12 करोड़ का हदफ, 12 अरब में कितना कौन हिस्सा मिलाता है। हमारे माशाअल्लाह जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना, दारुल मदीना, फिर मदारिसुल मदीना बालिगान बालिगात, फिर इसके अलावा भी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, बच्चे बड़े बूढ़े सब आशिकाने दुरूद सलाम है। तो मतलब हम लोग तो हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। दारुल मदीना की तरफ से पहला मेरी तरफ तहरीर आई है। इंशाल्लाह इन्होंने 2 अरब 12 करोड़ दुरूद पाक की इन्होंने नीयत भेजी है। दारुल मदीना जो इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है, उस पर फैज़ान इस्लामिक स्कूलिंग भी आ जाता है। और मैं यूँ अर्ज़ करूँ कि अमीर सुन्नत 1200 दुरूद शरीफ का जैसे कि बयान फरमाया, तो 1200 दुरूद शरीफ रोज़ पढ़ना 1 महीने में तकरीबन 36,000 दुरूद पाक पढ़े जा सकते हैं एक इस्लामी भाई इस्लामी बहन की तरफ से। तो यूँ अगर 33 लाख 33 लाख आशिकान रसूल मिलकर रोज़ 1200 दुरूद पाक पढ़ें तो 12 अरब का फिगर, 12 अरब का तादाद तो मतलब पूरी हो जाती है। और आशिकान रसूल तो करोड़ों की तादाद में हैं। अगर ये पैगाम को आम करें और दुरूद पाक पढ़ते रहें, घरों में पढ़ते रहें, तो 1200 तो एक अमीर सुन्नत ने बयान किया 1200 दुरूद पाक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो रोज़ाना के 12-12 हज़ार दुरूद पाक पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। जुम्मा में तरगीब हो जाए, बयानात में तरगीब हो जाए, इज्तिमाआत में तरगीब हो जाए। मदारिसुल मदीना बालिगान में कमो बेश पढ़ने पढ़ाने वालों की तादाद 3 लाख से ज़्यादा है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ भी ये दुरूद पाक पढ़ने की तहरीक चलाई जाए, 3 लाख के आसपास हमारे बच्चे और बच्चियाँ मदरसतुल मदीना बच्चों और बच्चियों में पढ़ रहे हैं, तलबा कराम है जामियातुल मदीना में, अमीर सुन्नत ने फरमाया सब मिलकर इंशाअल्लाह। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ दावत इस्लामी वाले और जहाँ जहाँ तमाम आशिकान रसूल दुनिया भर के, ये अल्लाह पाक हमें तौफीक दे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगाह करम हम पर आ जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप अपनी नीयत भेजें इंशाअल्लाह हर हफ्ते इसका, बल्कि रोज़ाना ऐलान होगा। मतलब 13 मदनी मुज़ाकरे, बल्कि शायद हो सकता है 14 मदनी मुज़ाकरे हो जाएं। तो यूँ मक्का मदीना होता रहेगा। जिससे कि आप चाहें तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये दुरूद पढ़ लें, ये भी दुरूद शरीफ है। ये बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज करने के ताल्लुक से मैं वो सलाम के बाब पर कुछ मवाद जमा किया मैंने। तो बड़ा प्यारा नुक्ता एक मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने बयान किया है, यानी मैं अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। जैसे हम किसी को अगर करते हैं अस्सलाम वालेकुम तो हमारी तरफ मुतवज्जे होगा वालेकुम अस्सलाम, है ना, कहेगा मुतवज्जे हो जाएगा। तो हम बारगाह रिसालत में जब अर्ज करेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मुतवज्जे नहीं होंगे। तो अब हम जितना ज्यादा किसी को सलाम करेंगे वो ज्यादा हमसे करीब आएगा, दुनियावी एतबार से भी वो मुतासिर होगा, आते जाते उठते मिलते जुलते, है ना, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जब जब यानी कि आमना सामना हम करेंगे तो उसको एक खुशी महसूस होगी और सलामती की दुआ है। तो सलामती की दुआ देंगे, वो भी जवाबी सलामती की दुआ देगा कि तुम पर भी सलाम हो, कि तुम पर भी सलामती हो। तो बारगाह रिसालत में जब अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आप पर सलामती हो, आप पर रहमत हो, दुरूद हो, तो सरकार भी जवाबन इरशाद फरमाएंगे वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। और सरकार की एक बार ये दुआ मिल गई, खुदा की कसम दोनों जहां में सलामती हमारा मुकद्दर हो जाएगी।
तो यूँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो चाहने के लिए बार बार सलाम अर्ज किया जाए, तो यूँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। और इनकी तवज्जो, इनकी नजर रहना बेड़ा ही पार है दोनों जहां में। तो यार मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने जो बयान किया, मैं उसको अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में बयान किया मैंने। तो ये भी पढ़ सकते हैं दुरूद शरीफ। अच्छा, मजीद ये कि दुरूद खिजरी भी पढ़ा जा सकता है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। तो आप कमल अल्फाज का दुरूद शरीफ लें, ज्यादा अल्फाज का दुरूद शरीफ लें, जो आप आसानी से पढ़ सके, या बदल बदल के पढ़ें। तो इस तरह मतलब ये कि 12 अरब का सवाल है, अल्लाह पूरा कर दे। मदरसतुल मदीना मगर की नियत आई है 12 अरब। असल ये बैठे बैठे एक आदमी नियत कर लेता है, समझे, या 2-4 को पूछ लेता होगा। मेरे ख्याल में इसमें मोहताज जुमला ये होगा कि हम इंशाअल्लाह नियत करते हैं कि 12 अरब कोशिश करके पढ़वा कर आपको कारकर्दगी पेश करेंगे। हम नियत करते हैं, कोशिश करेंगे। अब एकदम वो डन कर देते ना, 12 अरब ने 12 खरब ने, सो बोले क्या मतलब यार। अभी तो मोहतात बात होगा, तज़किरा चल रहा था, तो हम पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह, हम कोशिश करेंगे। हमारी नीयत है कि 12 अरब इंशाअल्लाह हम जमा करके आपको देने की कोशिश करेंगे, या मैं तरगीब दूंगा 12 अरब ने। कोई ऐसा जुमला हो कि जिससे एकदम ये अपने माई बाप में ये नहीं कि 12 अरब हम हमको दे देंगे। जैसे अभी आपके हाथ में बटन दबाओगे और ठका दे के तस्बीह पढ़ना शुरू कर देगी कौम, समझे, सारे काम छोड़ के। या अपनाइयत में मैं सब अर्ज कर रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोमिनों पर रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा सलातो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सब'i, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सब'i, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सब'i, अस्सब'i, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका, व अतूबु इलैक, व अतूबु इलैक। ला इलाहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی سنتے ہیں، اور اس ہفتے کون سا رسالہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، آئیے اس کے حوالے سے خلیفہ امیر اہل سنت کی دعا سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے خلیفہ امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ کریم، جو کہ تقریباً 40 صفحات و مشتمل ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ فیضان دعوت اسلامی کے کم سے کم 14 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے ایمان عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع مقدر فرما، اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے دعوت اسلامی کی ترقی کے راستے، نیک اعمال کی ضرورت، دعوت اسلامی کبھی پیچھے نہیں ہٹی، اور بہت کچھ. اردو زبان میں 41 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 60 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، پشتو، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ فیضان ام عطار پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ فیضان ام عطار رحمت اللہ علیہ، پاکستان اسلامی بھائی 17,88,293 17,88,293 پاکستان اسلامی بہنیں 8,84,591 8,84,591 اوورسیز اسلامی بھائی 36,468 36,468 اوورسیز اسلامی بہنیں 1,32,842 1,32,842 مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,42,194 28,42,194. فیضان ام عطار رحمت اللہ علیہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. 2 ستمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار سیدھی کی تھی، وہ دیوار اور اس کے نیچے موجود خزانہ کس کا تھا؟ جواب، دیوار اور خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا. سوال نمبر 2، امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا بیان کس موضوع پر کیا؟ جواب، فضول خرچی کے موضوع پر. سوال نمبر 3، قبر پر اگی ہوئی تر گھاس اکھاڑنے سے کس کی حق تلفی ہوتی ہے؟ جواب، اس سے میت کی حق تلفی ہوتی ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبد الرحمن بورے والا، ام سعد اورنگی ٹاؤن کراچی، محمد جاوید اتاری میر پور خاص، بنت ذوالفقار شیخو پورا، بنت سید رشید شاہ بخاری ڈیرہ غازی خان، بنت لطیف لاہور، محمد عبد الرحمن اتاری فیصل آباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام سعد اورنگی ٹاؤن کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.